Good evening, students. Hope you all are healthy, safe and fit at your home. Students, some of you had requested me to create videos on macroeconomics for grade 12. So today, I have created the first video on macroeconomics on the chapter Aggregate Demand and its Components. I would be covering this entire chapter in 4 different videos. In this first video, I would be talking about only aggregate demand, its meaning, concept and its components. Now, just let me give you an idea what I would be covering in this particular video. In this video, I would be talking of the concept of demand, the concept of market demand, the concept of aggregate demand, difference between market demand and aggregate demand, and the components of aggregate demand. Let me tell you one thing, unless and until you are very clear with the concept and meaning of demand, you will not be able to understand aggregate demand. So that is why I have started with the concept of demand first. So let's get started. What is demand? Demand refers to the quantity of a commodity that all individuals or an individual is ready to buy or willing to buy and able to buy at given time and at given prices. If you have observed, I have highlighted 4 things over here: willingness to buy, ability to buy, given time and given prices. These are the 4 important things that you need to understand the concept of demand. Now, let's begin with an example. You all must have gone to a shopping mall. Many a times you all must have been there. You see so many products there. Are you willing or are you ready to buy each and every product? No. Frankly speaking, you cannot afford to buy each and every product also. You would be ready to buy or you would be willing to buy only those products which you need or which attract you. आप बहुत बार शॉपिंग मॉल गए होंगे, आपने शॉपिंग मॉल में इतने सारे प्रोडक्ट्स देखे, क्या आप वो सारे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, विलिंग होते हैं? नहीं, आप उनमें से सिर्फ वो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए विलिंग होते हैं, रेडी होते हैं जिनकी या तो आपको जरूरत है, नीड है, या जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं. लेट्स से अ स्मार्टफोन है ना. सो यू आर नॉट रेडी टू बाय ईच एंड एवरी कमोडिटी. सो व्हाट आई वांट टू हाईलाइट ओवर हियर, in economics your desire to buy a commodity cannot be termed as demand. आपकी अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने की सिर्फ इच्छा है तो हम उसको डिमांड इकोनॉमिक्स में नहीं कह सकते. हम डिमांड उसको तभी कहेंगे, आपकी किसी इच्छा को डिमांड तभी कहेंगे when you are ready or willing to buy that particular commodity, क्योंकि तभी आप उस प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू या इनकम जनरेट कर पाएंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट्स से आपके पास 2 लाख रुपए हैं, यू हैव दैट मनी विद यू, राइट, एंड you have a desire to buy a necklace, gold necklace. आपकी एक गोल्ड नेकलेस खरीदने की इच्छा है और आपके पास 2 लाख रुपए हैं. अब आपकी इच्छा तो है नेकलेस खरीदने के लिए, बट यू वुड नॉट बी रेडी और यू वुड नॉट बी विलिंग टू बाय दैट नेकलेस बिकॉज आप मेंटली प्रिपेयर्ड क्यों नहीं है वो नेकलेस खरीदने के लिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपको ये 2 लाख रुपए अपने बच्चे की एजुकेशन के पे खर्च करने हैं या एजुकेशन के लिए रखने हैं. तो आपकी इच्छा है, बट दैट डिजायर कैनॉट बी गिवन द नेम ऑफ डिमांड. रीजन, you are not willing or you are not mentally prepared or ready to buy that particular commodity. अब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हुआ. आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए किसी चीज को खरीदने की, आप रेडी होने चाहिए किसी चीज को खरीदने के लिए, तभी उसको हम डिमांड कह सकते हैं. पर इसके साथ दूसरी कंडीशन भी आती है, योर एबिलिटी टू बाय. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड है किसी चीज को खरीदने के लिए, बट आपके पास इनफ परचेजिंग पावर नहीं है, आपके पास इनफ एबिलिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपिंग मॉल गए, शॉपिंग मॉल जाने से पहले यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड
कि आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है एंड यू वेंट टू शॉपिंग मॉल फॉर परचेजिंग दी स्मार्टफोन ओनली। आप रेडी थे, आप विलिंग थे स्मार्टफोन खरीदने के लिए, लेकिन जैसे ही आपने प्राइस टैग देखा आपको ये समझ में आया कि आपके पास उतनी इनफ परचेजिंग पावर नहीं है। आप विलिंग थे परचेज करने के लिए, आप परचेज करने के लिए रेडी थे, बट यू आर नॉट एबल टू बाय, क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर नहीं थी। तो इकोनॉमिक्स में आपकी किसी भी डिजायर को डिमांड का नाम हम तभी दे सकते हैं when you are mentally prepared or ready to buy that particular commodity, and that means you are willing to buy that commodity and you have enough purchasing power, you are able to buy that commodity, right? ये तो हुई एक बात। यहाँ हमको एक और चीज समझनी है, मैंने दो और चीजें हाईलाइट की थी। गिवन टाइम, गिवन प्राइसेस। रिमेंबर वी ऑल बिहेव लाइक दैट। टाइम बदलता है तो हमारी डिमांड भी बदलती है। वी डिमांड आइसक्रीम्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स मोर इन समर्स कंपेयर टू विंटर्स। वी डिमांड वूलन्स एंड विंटर्स। वी डिमांड कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स। तो हमारी डिमांड भी टाइम के हिसाब से वेरी करती है। दूसरा, डिमांड इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्राइसेस। हायर प्राइस पे, ये हमारा इन जनरल बिहेवियर है, हम हायर प्राइस पे डिमांड कम कर देते हैं और लोअर प्राइस पे डिमांड बढ़ा देते हैं। दिस इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो हमें ये समझ में आ गया कि डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिमांड इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो हमेशा टाइम और प्राइसेस पर डिपेंड करता है। और क्योंकि वो टाइम और प्राइसेस पर डिपेंड करता है, इसलिए डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्लेन्ड with reference to time and with reference to prices। अब ये तो हमने जनरल कॉन्सेप्ट समझ लिया। डिमांड है क्या, अब हमको समझना है व्हाट इज मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड समझते हैं। मार्केट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ द मार्केट फॉर वन सिंगल कमोडिटी। किसी एक सिंगल कमोडिटी के सारे मार्केट के जितने कस्टमर्स हैं, सारे जितने लोग वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं, दैट वुड बी टर्म्ड एज मार्केट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन के जितने भी कस्टमर्स हैं मार्केट में, ऑल द कस्टमर्स ऑफ द स्मार्टफोन वो आर गोइंग टू मेक अप अ मार्केट डिमांड। तो किसी भी एक कमोडिटी के मार्केट के सारे कस्टमर्स, दैट वुड बी टर्म्ड एज मार्केट डिमांड। अब बात आ रही है एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ all the goods and all the services that have been produced by our country। एक देश ने जितने भी गुड्स और जितने भी सर्विसेज एक साल में बनाए हैं, उन सारे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड क्या कहलाती है, एग्रीगेट डिमांड। यहां हम एक और चीज समझेंगे, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड का डिफरेंस। मार्केट डिमांड माइक्रो कॉन्सेप्ट है, जबकि एग्रीगेट डिमांड मैक्रो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड एक प्रोडक्ट की डिमांड बाय ऑल द कस्टमर्स मेजर करता है, किसी एक प्रोडक्ट की, जबकि एग्रीगेट डिमांड सारे प्रोडक्ट, सारे गुड्स और सारे सर्विसेज की, सारे कस्टमर्स की डिमांड मेजर करता है। सो मार्केट डिमांड टॉक्स ऑफ ओनली डिमांड ऑफ ऑल द कस्टमर्स फॉर वन प्रोडक्ट, वन कमोडिटी। एग्रीगेट डिमांड बात करती है डिमांड बाय ऑल द कस्टमर्स फॉर ऑल दी गुड्स एंड ऑल दी सर्विसेज। तो ये डिफरेंस है एग्रीगेट डिमांड की। अब हम आते हैं मेन बात पर। एक्चुअली वी हैव टू नाउ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले आई विल अगेन रिपीट द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मीनिंग है क्या? एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स, all the services that have been produced by a country। किसी एक देश ने एक साल में जितने गुड्स और सर्विसेज बनाए हैं, उन सारे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। यहां हम एक और बात समझेंगे, हमारा एक क्वेश्चन आना चाहिए, हाउ आर वी गोइंग टू मेजर द एग्रीगेट डिमांड। हम नापेंगे कैसे एग्रीगेट डिमांड को? क्या हम एग्रीगेट डिमांड को फिजिकल क्वांटिटीज में मेजर कर सकते हैं? क्या हम 10 लीटर्स मिल्क, 2 स्पून्स, 3 स्मार्टफोन
स्मार्टफोन्स, 2 बाइक ऐसे मेजर कर सकते हैं? नहीं। रीजन, क्योंकि सबकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है। सो ऑब्वियसली उस केस में हम एग्रीगेट डिमांड कैसे मेजर करेंगे? बाय कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मॉनेटरी टर्म्स। हम हर गुड, हर सर्विस की वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे मॉनेटरी टर्म्स में और फिर वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 15,000 का स्मार्टफोन प्लस 20 रुपीज की स्पून्स प्लस 35,000 की बाइक. So this will give you the figure of total demand that have been created by the country or total value of goods and services that have been produced. तो हमने यहाँ ये समझ लिया कि एग्रीगेट डिमांड में हम जब एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं, नापते हैं, तो वी विल नेवर add physical quantities, rather we are going to add the monetary value or the market value of the goods and services. One more thing you need to understand, aggregate demand is equal to aggregate expenditure. Aggregate demand और aggregate expenditure एक ही बात है और ऐसा क्यों है ये समझेंगे हम. आप जब भी गुड्स डिमांड करेंगे, इसका मतलब आपने एक्चुअल उनको परचेज कर लिया है और आपने प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू जनरेट कर दिया है. तो जब भी आप गुड्स डिमांड करेंगे तो आप एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे. जैसे आप एक्सपेंडिचर करेंगे, अदर कस्टमर्स आर ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम. जैसे ही वो गुड्स डिमांड करेंगे, एक्सपेंडिचर वुड बी क्रिएटेड. इसका मतलब जितने वैल्यू के गुड्स डिमांडेड होंगे उतनी ही वैल्यू का एक्सपेंडिचर क्रिएट होगा. सो एग्रीगेट डिमांड इज गोइंग टू बी इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई हैव डिमांडेड एयर कंडीशनर ऑफ 35,000. जब मैंने 35,000 का एयर कंडीशनर डिमांड किया है, मतलब मैंने 35,000 का एक्सपेंडिचर किया है, तो ऑब्वियसली मेरी डिमांड एंड एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी इक्वल. ऐसे ही सारे कस्टमर्स जितने डिमांड करते हैं उतना ही उनका एक्सपेंडिचर क्रिएट होगा. सो एग्रीगेट डिमांड वुड ऑलवेज बी इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. तो कभी कभी हमको जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेजर करना होता है तो हम एक काम और करते हैं, हम पूरे देश में कितना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हुआ है वो नाप लेते हैं और वो नापने से भी हमको पता चल जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है. यहाँ एक और चीज हम समझेंगे, एग्रीगेट डिमांड जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको दो अलग अलग लेवल पर स्टडी करते हैं, विद रेफरेंस टू प्राइस एंड विद रेफरेंस टू इनकम. यहाँ इसका थोड़ा सा हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे. एग्रीगेट डिमांड हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस. प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम हो जाती है, प्राइस फॉल करता है, डिमांड बढ़ जाती है. तो रिमेंबर वन थिंग, एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल हमेशा इनवर्स रिलेशन में चलते हैं, निगेटिव रिलेशन में पड़ता है. जब भी इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, जनरल प्राइस लेवल गिरेगा, डिमांड बढ़ जाएगी. अब एग्रीगेट डिमांड का रिलेशनशिप समझ लेते हैं विद रेफरेंस टू इनकम. एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम आर पॉजिटिवली रिलेटेड. पॉजिटिवली रिलेटेड मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, इनकम फॉल करेगी, एग्रीगेट डिमांड भी फॉल करेगी. तो प्राइस और एग्रीगेट डिमांड तो निगेटिवली रिलेटेड है, जबकि इनकम और एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिवली रिलेटेड है. रिमेंबर वन थिंग, आपके सिलेबस में अभी सिर्फ एग्रीगेट डिमांड विद रेफरेंस टू इनकम ही है. सो हम इनकम का बिहेवियर, इनकम की वजह से एग्रीगेट डिमांड में कैसे चेंजेस आते हैं, हम उसी को डेप्थ में स्टडी करेंगे. लेट्स मूव फर्दर. ओके, नाउ वन मोर स्लाइड, आगे बात करते हैं. अब कुछ और चीजें भी आपको मुझे समझानी है. आई नीड टू एक्सप्लेन यू द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड बिहेव कैसे करता है, मुझे आपको वो समझाना है. इससे पहले कि आई एक्सप्लेन यू द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है. 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, closed economy and open economy. Remember one thing, these are the questions that would be asked to you in 2 marks. तो आप ये कॉन्सेप्ट्स भी जितना क्लियर रखेंगे आपको 2 मार्क्स में आंसर करने में इजी होगा. 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब
an economy where only two segments are present, that is the consumers and the producers. हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का टाइम वो टाइम था जहां पर एक इकोनॉमी में या तो प्रोड्यूसर्स होते थे या कंज्यूमर्स होते थे, दो ही सेगमेंट्स होते थे. इस टाइप की इकोनॉमीज को बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी. तो टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब हुआ ऐसी इकोनॉमीज जहां पर जिस इकोनॉमी में सिर्फ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ही हैं. अब आते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी. क्या हुई? थ्री सेक्टर इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमीज जिसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं और इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी है. गवर्नमेंट का रोल भी आ गया. ये कहलाती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी. तो टू सेक्टर इकोनॉमी और थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या डिफरेंस आया? थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आ गई. फिर बात करते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी. फोर सेक्टर इकोनॉमी मीन्स जहां पर इकोनॉमी में चार अलग अलग सेगमेंट्स प्रेजेंट है. कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हमारे देश के अलावा बाकी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है, दे वुड बी टर्म्ड एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो इसका मतलब आपके बाहर के देशों से भी अब रिलेशन एस्टैब्लिश हो गए. जब मैंने आपको टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी समझा दिया, तो मुझे आपको क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी भी समझाना है. रिमेंबर, टू सेक्टर इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे. क्यों? क्योंकि यहां आपके बाहर के देशों से कोई रिलेशनशिप नहीं है. थ्री सेक्टर इकोनॉमी को भी आप क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे. क्यों? क्योंकि यहां पर भी आपके बाहर की कंट्री से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई रिलेशनशिप नहीं है. फोर सेक्टर इकोनॉमी वुड बी कॉल्ड एज ओपन इकोनॉमी, क्योंकि यहां पर आपके बाहर के देशों से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गए हैं थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. सो टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, whereas फोर सेक्टर इकोनॉमी इज अ ओपन इकोनॉमी. तो आपने टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर इकोनॉमी भी समझ लिया और आपने क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी भी समझ लिया. नाउ what you need to understand is एग्रीगेट डिमांड को टू सेक्टर इकोनॉमी में हम कैसे मेजर करेंगे, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कैसे मेजर करेंगे और फोर सेक्टर इकोनॉमी में कैसे मेजर करेंगे. अब इसको समझेंगे. रिमेंबर, कंज्यूमर जब भी कोई एक्सपेंडिचर करता है, कोई खर्चा करता है, तो उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो खर्चा करेगा कंजम्पशन पे. लेकिन प्रोड्यूसर जो खर्चा करता है वो खर्चा करता है कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पे. कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जिनसे आप दूसरे गुड्स बना पाओगे. तो क्योंकि प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स पे ज्यादा खर्चा करता है, इसलिए कैपिटल गुड्स के एक्सपेंडिचर को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं सी से और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डिनोट करते हैं हम आई से. तो एक चीज अगर मुझे ये बताना है, मुझे समझना है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे मेजर हो रही है, कैसे नाप रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट तो है ही नहीं. अब आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हम एग्रीगेट डिमांड कैसे नापेंगे, टोटल डिमांड कितनी हुई है कैसे नापेंगे. तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड आप कैसे नापेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नापेंगे पहले, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नापेंगे प्राइवेट सेक्टर का, और यहां पर फिर आप गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर मेजर कर लेंगे. रिमेंबर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंकर करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है. जैसे वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बना रही है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन वो सड़क बनाने के लिए रॉ मटेरियल ला रही है तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है. तो टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, कंज्यूमर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, सारे प्रोड्यूसर्स. थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे मेजर कर रहे हैं, सारे कंज्यूमर्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, सारे प्रोड्यूसर्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, और गवर्नमेंट का कंजम्पशन प्लस
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, C प्लस I प्लस G। 4 सेक्टर इकोनॉमी में आप एग्रीगेट डिमांड कैसे मेजर करेंगे? C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल दी कंज्यूमर्स प्लस I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल दी कंज्यूमर्स प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस X माइनस M। X माइनस M क्या हो गया? नेट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि अब आप एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे भी खर्चा कर रहे हैं। तो तीनों सेक्टर्स में आप कैसे एग्रीगेट डिमांड मेजर कर रहे हैं ये भी आप सीख रहे हैं। लास्ट थिंग विच आई वांट टू टेक अप विद यू, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बिहेव कैसे करती है आप ये समझेंगे। कैन यू सी वन थिंग इन दिस टेबल? Can you see one thing in this table? I am in this table showing you the demand change due to change in income। जैसे इनकम चेंज हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी चेंज हो रही है। देखिए, जब इनकम 0 है तो डिमांड है 40, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कभी कभी रिमेम्बर वन थिंग, आपकी इनकम 0 हो सकती है। बहुत सारे लोग अभी कोरोना वायरस के टाइम पे जॉबलेस हो गए थे, उनकी इनकम 0 हो गई थी, पर कंजम्पशन 0 नहीं हुआ, क्योंकि कंजम्पशन उनको करना ही था। उनको बेसिक रिक्वायरमेंट तो है ही, फूड, मेडिसिन, शेल्टर, ये उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ही। पर ये अपनी वो बेसिक रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेगा? वो ये अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, अपनी पुरानी सेविंग्स यूज करेगा, किसी से बोरो करेगा, कोई एसेट बेचेगा। तो यहाँ मैं आपको क्या समझा रही हूँ, इनकम तो 0 हो सकती है पर कंजम्पशन 0 कभी भी नहीं हो सकता। 0 इनकम पर भी कंजम्पशन होगा। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन व्हेन योर इनकम इज 0। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली वी ऑल बिहेव लाइक दिस। हमारी भी जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इससे आपको एक और चीज प्रूफ हो गई, इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। बट आपने एक चीज नोट की, एक लेवल के बाद जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ रही है एग्रीगेट डिमांड उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही, एग्रीगेट डिमांड उससे कम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। रीजन, एक टाइम के बाद आपके अंदर टेंडेंसी आ जाती है दैट यू आर गोइंग टू नाउ सेव सम पार्ट ऑफ योर इनकम। आप सेविंग करने लगते हैं। जब आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो आप कुछ पार्ट सेव करने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में ये लेवल भी आएगा कि एग्रीगेट डिमांड, आपकी डिमांड ज्यादा है, आपकी इनकम कम है, तो आप निगेटिव सेविंग्स क्रिएट कर रहे हो। और बाद में ये लेवल भी आएगा जब आपकी इनकम ज्यादा है और